Dear students, today we are going to read the lesson Deep Water, written by William Douglas. Deep Water is our autobiographical account of the author's childhood misadventure at the swimming pool. In this chapter, he tells us how, as a young boy, he was nearly drowned in the swimming pool. Thereafter, he feared water so much that he avoided it whenever he could. But on the other hand, he was also determined to get rid of his fear. Slowly and steadily, he overcame the fear of water in the end. The chapter Deep Water is an easy written by William Douglas, in which he shares about his fear of water and how he overcomes the fear with courage, hard work, determination, willpower, perseverance, and a strong desire to learn swimming. The theme covered in this chapter is fear and his triumph over it. इस लेसन में जिस विषय वस्तु को उठाया गया है वो है भय, फियर, और फिर उसके ऊपर विजय प्राप्त करना. इट कन्वेज द आइडिया दैट फियर इज ए ग्रेट ऑब्स्टिकल टू आवर हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस. इस विचार को इसमें दर्शाया गया है कि भय जो है एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे प्रोग्रेस में, हमारी खुशियों को प्राप्त करने में. इट इज ए नेगेटिव फीलिंग which we can overcome by sheer willpower and optimism. एक नकारात्मक विचार है जिस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने शक्ति से और उम्मीद से. William Douglas, the narrator of the story, was a positive thinker. He feared water since childhood. बचपन से ही वो पानी से उन्हें भय था. So he decided to overcome his fear. तो उन्होंने निर्णय किया कि इस भय पे उन्हें विजय प्राप्त करनी है. जो पानी से उन्हें भय लगता था उस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा थी. He was a determined man with a very strong willpower. बहुत तीव्र इच्छा शक्ति थी उनकी. It was his determination and willpower that helped him get rid of his fear. और ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति ही थी जिससे उन्हें इस भय से निजात मिली. He was a strategic thinker also. और वो एक थिंकर भी थे. When he was unexpectedly pushed into the water, he quickly planned his strategy to save his life. और ये बात सिद्ध होती है जब वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे और उन्हें धक्का दे दिया गया, तुरंत उनके मस्तिष्क ने अपने जीवन को बचाने की प्लानिंग शुरू कर दी. The excerpt Deep Waters, written by William Douglas, is taken from his book of Men and Mountains. Deep Water talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. His first such experience was on the sea beach. He was with his father when a powerful wave swept over him. Though the wave receded, it left Douglas petrified. He decided to learn swimming. For this, he chose the YMCA pool. It was safe. Its depth at the shallow end was only 2 feet. However, the deep end was 9 feet deep. One day, a strong young man picked Douglas and tossed him into the deep side of the pool. Douglas sank to the bottom. However, he jumped and came up gradually. Fear had seized him and he was nearly drowned. His efforts to save himself went in vain. No one came to his rescue. He tried to breathe but swallowed water. Though death was at his doorstep, he experienced complete freedom from the fear of death. He lay in complete peace. There was no sensation of or fear of death. But someone finally saved him. This horrific experience, however, shook Douglas badly. Its memories haunted him so much that he felt sick. The sight of water rattled him so much that he could not even go canoeing or fishing. Finally, he made up his mind to overcome his fear. He found an instructor who trained him as a swimmer bit by bit. He was able to overcome his fear completely and swim for miles. The experience of fear and death and its conquest made him live intensively.
Conquering fear made him realize the true value of life, and this helped him enjoy every moment of his living. He finally learned to live life to the fullest. About the author, William Douglas was born in Maine, Minnesota in the year 1898. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. After a brief stint teaching, he pursued a career in law. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. Theme of the lesson. The lesson tells the story of how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. ये लेसन हमें कहानी उनकी बताती है कि किस तरह से युवा बालक के रूप में विलियम डगलस लगभग एक स्विमिंग पूल में डूब ही चुके थे. Douglas talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. और इस लेसन में डगलस पानी से भय जो उन्हें लगता था उसके बाद, इस घटना के बाद, और कैसे उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की, इसी कहानी को ये दर्शाती है. The lesson can be considered a treatise on fear and its effect on people. इस लेसन भय और उसका क्या असर होता है लोगों पर, इसी बात को दर्शाती है. The author overcame this fear by facing it repeatedly and challenging himself to come out ahead instead of giving in to the fear. और ये इसमें लेखक जो है इस भय पर विजय प्राप्त करते हैं उसका सामना करते हुए. बार बार जो भय उनको था उसका सामना उन्होंने किया और चैलेंज लिया कि ये भय के वशीभूत हो न हो करके वो इससे निजात पाए. इस लेसन की थीम है. नाउ द स्टोरी. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड. ये घटना तब घटी थी जब मैं 10 या 11 वर्ष का रहा हूँगा. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने निर्णय किया तैराकी सीखने का, तैरने का. देयर वाज ए पूल इन YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एक्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. और हमारे करीब में ही YMCA याकिमा में एक स्विमिंग पूल था जहां पर यह अवसर उपलब्ध था स्विमिंग सीखने का. द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस. ये भयावह नदी थी, हमारे यहाँ जो याकिमा नदी थी. मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट. और मेरी माँ हमेशा इस नदी के बारे में मुझे चेतावनी दिया करती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. और बार बार मुझे ये बात बता करके इस नदी में कितनी डूब करके मौतें हुई हैं, वो ये बात मुझे बताती रहती थी और मुझे याद दिलाया करती थी कि वहाँ नहीं जाना है. बट द YMCA पुल वॉज सेफ. लेकिन YMCA का जो स्विमिंग पूल था वो सुरक्षित था. इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड. वो किनारे से 2 या 3 फीट गहरा था. एंड वाइल इट वॉज इन द 9 फीट डीप एट द अदर. और दूसरी तरफ 9 फीट गहराई थी. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और जो ये गहराई कैसे जो क्रमशः गहरी होती जाती थी वो बहुत धीरे धीरे था. पहले 2-3 फीट, 2.5 फीट ऐसे करके उसकी गहराई थी. आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स के लिए और मैं पूल पर गया. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट. अब मुझे कपड़े निकाल करके स्विमिंग पूल में जाने में अच्छा नहीं लगता था. एंड शो माई स्किनी लेग्स, जिसमें मेरे पतले दुबले पैर दिखते थे. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मुझे स्विमिंग सीखनी थी तो मैंने इसको भी मैंने एक तरफ रख करके और मैंने ऐसा किया, कपड़े निकाले. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर. और शुरुआत से ही पानी से मुझे भय था. व्हेन आई वाज इन इट. और जब मैं उसमें गया तो मुझे बहुत भय था. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड. और ये भय जो मुझे पानी से, इसकी शुरुआत हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. और मेरे पिताजी कैलिफोर्निया बीच पर मुझे ले गए. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. और हम लोग वहाँ पानी में खड़े थे. आई हंग ऑन टू, मैं उनको पकड़े हुए था. एट द वेव्स नॉक मी डाउन. फिर भी लहरें इतनी तीव्र थीं, उसने मुझे गिरा दिया. एंड स्वेप्ट ओवर मी. और मैं तो लगभग डूब ही गया पानी में. मेरे सर के ऊपर से पानी चला गया. आई
was buried in water. मैं तो पानी में दफन ही हो गया. My breath was gone. मेरी सांस रुक गई. I was frightened. मैं भय से, मैं बहुत भयभीत हो गया. Father laughed. पिताजी हंसे. But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. और लेकिन पिताजी तो हंस रहे थे, लेकिन मेरे दिल में भय बैठ गया कि पानी कितना शक्तिशाली है. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. और जब मैं YMCA पुल पर गया, वहां पर भी बहुत ही अनप्लेजेंट मेमोरीज रहीं, जिससे मेरे बचपन का भय और बढ़ता गया. बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन बाद में मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लिया है, इकट्ठा किया. आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स. मैं अपने नए वाटर विंग्स के साथ पानी के अंदर गया. वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम. दूसरे बच्चों को देखते हुए और मैंने भी सीखने की कोशिश की. आई डिड दिस 2 or 3 times on different days. मैं ऐसा भिन्न भिन्न दिनों में 2 या 3 बार करता था. एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर. और मैं पानी के साथ अपनी दोस्ती कायम करना चाहता था. मैं अपने भय को निकालना चाहता था. व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. और अभी मैं पानी के भय से अपने को निजात दिलाना ही चाहता था जब ये घटना मेरे साथ पुनः घटी. आई वेंट टू द पूल. मैं पूल पर गया. व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. जब वहां पर कोई भी नहीं था. द प्लेस वाज क्वाइट. जगह बहुत शांत थी. द वाटर वाज स्टिल. पानी स्थिर था. एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब. और जो स्विमिंग पूल का जो बॉटम था, तला था, टाइल इसमें लगी हुई थी, बहुत साफ और एक बाथ टब की तरह से दिख रहा था. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन. मुझे भय लग रहा था क्योंकि मैं उस समय अकेला था स्विमिंग पूल में और मैं अकेले पानी के अंदर प्रवेश करने से डर रहा था. सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. इसलिए मैं स्विमिंग पूल के किनारे बैठ गया और दूसरों लोगों का आने का इंतजार करने लगा. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग. अभी मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था. व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय. जब एक खट्टा कट्टा एक बालक वहां आया. प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड. संभवतः वो 18 वर्ष का रहा होगा. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसकी छाती पर बहुत घने बाल थे. ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन. और बहुत ही सुंदर शरीर था उसका. विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. पैरों से, बाजुओं से उसके मसल्स दिखते थे. ही एल्ड. और उसने आते ही कहा, हे स्किनी, ओ दुबले पतले, हाउ डू लाइक टू बी डक्ड. तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें पानी में डाल दूं. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. और इतना कहने के साथ ही साथ उसने मुझे उठाया जिस पोजीशन में मैं बैठा हुआ था, और आलती पालती मारे उसने मुझे उठाया और पानी स्विमिंग पूल के गहरे सतह की तरफ मुझे फेंक दिया. आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन. और मैं बैठे बैठे ही उसी पोजीशन में लैंड किया पानी पर. स्वेलोड वाटर. और पानी के अंदर गया, पानी पी लिया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. और एकाएक मैं बॉटम तले में चला गया. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं डर गया. बट नॉट एट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. लेकिन इतना भी नहीं डरा कि मैं अपने होश खो दूं. ऑन द वे डाउन आई प्लान. और जब मैं स्विमिंग पूल के अंदर जा रहा था, मैंने योजना बनाई. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम. कि जब मेरे पैर तले को छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप. और मैं वहां पैरों की मदद से मैं उछाल मारूंगा ऊपर की तरफ. कम टू द सरफेस. और मैं ऊपर आ जाऊंगा. ऐसी मैंने योजना बनाई. लाई फ्लैट ऑन इट. और जब मैं ऊपर आऊंगा, मैं पानी पर फ्लैट लेट जाऊंगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल. और पैडलिंग करता हुआ मैं स्विमिंग पूल के किनारे आ जाऊंगा. ऐसी मैंने योजना बनाई. Learning to swim. The narrator went to the YMCA pool to learn to swim as the Yakima River was dangerous. The narrator had always feared water due to an incident at the beach when he was 3 or 4 years old. Over time, as he practiced more, the fear subsided and he grew at ease with water. One day, a big bruiser of a boy was at the pool with him and no one else. The boy threw the narrator into the deep end of the pool. The narrator was frightened, but he planned to jump up with all his force as soon as his legs hit bottom. Dear students, until now you have learned this. It seemed a long way down,
जब मैं नीचे जा रहा था लग रहा था जैसे बहुत गहराई हो, बहुत लंबा। Those 9 feet were more like 90, वे 9 फीट जैसे 90 फीट की तरह से लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वेर रेडी टू बर्स्ट, और इसके पहले कि मैं बॉटम पे जाता, मेरे पैर बॉटम को छूते, मेरे फेफड़े जवाब दे गए, सांस, दम घुटने लगा। बट माई फीट हिट बॉटम, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पैर तले को छुए और मैंने पूरी शक्ति अपनी इकट्ठी की एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने ऊपर की तरफ छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, और मैंने कल्पना की थी कि मैं एक कॉर्क की तरह से मैं ऊपर उछल के आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवा पानी के। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, वो पानी जिसमें पीलापन था। आई ग्रू पैनिक, मैं डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैं ऊपर आया और जैसे मैंने उम्मीद की थी कि ऊपर कोई जैसे मुझे रस्सा मिल जाएगा, मैं उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लूंगा। लेकिन जब मैं ऊपर आया, सिवा पानी के मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने हाथों से पकड़ने की कोशिश की, सिवा पानी के कुछ नहीं था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू एल बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई भी आवाज मेरे गले से नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आंखें बाहर आईं और फिर नाक मेरी बाहर आई पानी से, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं निकला। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के ऊपर था। स्वेलोड एंड चोक, मेरा मुंह नहीं बाहर हुआ था, मैंने पानी पी लिया और पानी अंदर चला गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मेरे पैर ऊपर आ जाएं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे तो ऐसे नीचे लटके हुए थे जैसे कोई मृत वजन, डेड लेग की तरह से थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जैसे अपंग हो गए हों, पैरालाइज्ड हो गए हों, वो काम ही नहीं कर रहे थे। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक शक्ति जैसे मुझे फिर से पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज केवल पानी ने ही सुनी, स्विमिंग पूल के पानी ने। वहां कोई नहीं था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने फिर से वो यात्रा पूल के नीचे जाने की, स्विमिंग पूल में फिर से मैंने स्टार्ट की। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और जैसे जैसे मैं नीचे गया, मैं पानी के अंदर एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एन इरिसिस्टिबल फोर्स, और मैं अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा था जैसे मैं, जो नाइटमेयर मुझे आते थे, डरावने सपने, उसमें मैं अदृश्य शक्तियों से लड़ता था अपने को बचाने के लिए, ऐसे ही मैं अपनी शक्ति को इकट्ठा करके लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी पूरी सांस चली गई थी। माई लंग्स एज्ड, मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा मस्तिष्क भी नहीं काम कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे बेहोशी सी छा रही थी। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वो स्ट्रेटजी याद थी जो मैंने पहले प्लानिंग की थी कि जब मेरे पैर तले को छुएंगे तो मैं वहां से उछाल मारूंगा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, कि मैं बॉटम से मैं उछाल लूंगा और मैं एक कॉर्क की तरह से सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं फिर आकर के ऊपर मैं फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, अपने बाजुओं को, अपने पैरों को चलाते हुए मैं ऊपर आऊंगा, बाहर आऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, मैं किनारे आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता गया जैसे वो गहराई समाप्त ही नहीं हो रही। वो 9 फीट, जैसा राइटर ने बताया कि 90 फीट की तरह से लग रहे थे। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, मैंने अपनी आंखों को खोला लेकिन कुछ नहीं, पीलापन लिए हुए पानी दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा गहरा पानी, डार्क, जिसके में कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर से वो भय मेरे को जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो भय जो कोई भी, जिसकी समझ कुछ नहीं है। ए टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो भय जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो भय जिसे कोई समझ नहीं सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव नहीं किया हो। आई वॉज सिटिंग अंडर वाटर,
मैं पानी के अंदर जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर। मेरे हाथ पैर सब काम करना बंद कर दिए थे। मैं पैरालाइज्ड हो गया था, स्टिफ रिजिड विथ फियर। भय के कारण स्टिफ हो गए थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन। और यहाँ तक कि मेरी चीख भी नहीं निकल रही थी, वो भी जैसे जम सी गई हो। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड। केवल मेरा हृदय गति और मेरा मस्तिष्क, जिसमें मैंने योजना बनाई थी, वो काम कर रहा था। सेट दैट आई वाज स्टिल अलिव। वो ये बता रहे थे कि मैं अभी जीवित था। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। और जब मैं इस भय के बीचों बीच था, फिर एक तर्क मेरे विचार मस्तिष्क में आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। कि मुझे ये याद रखना है कि जब मेरे पैर तले को छुएंगे तो मुझे हिट करके ऊपर आना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और फिर अंत में मेरे पैरों के नीचे महसूस हुआ कि जैसे टाइल को मेरे पैरों ने छुआ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। मेरे पंजे पहुंचे जैसे उसके पकड़ लेना चाहते हैं, और मैं उछाल मारना चाहता था। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग। और मैंने पूरी मेहनत कोशिश करके मैंने ऊपर की तरफ उछाल ली, जितनी भी कोशिश मैं शक्ति लगा सकता था। बट द जम्प मेड नो डिफरेंस। लेकिन इस उछाल से कोई अंतर नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स। मैंने देखा जैसे कोई रस्सी मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर। कुछ नहीं सिवा पानी के। ए मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। वही पीलापन पानी पीलापन लिए हुए। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और वो भय जिसने मुझे और मेरे ऊपर गहराई से जकड़ बना दी, अपनी पकड़ बना दी। मैं और भयभीत हो गया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी का करंट लग जाए। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। मैं भय से कांपा। और माई आर्म्स वुडेंट मूव। मेरे बाजू बिल्कुल हिले नहीं। माई लेग्स वुडेंट मूव। मेरे पैर नहीं हिले। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने कोशिश की मदद की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाने की। नथिंग हैपेंड। कुछ भी नहीं हुआ था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। और फिर अजीब रूप से मैं ऊपर आ रहा था, कुछ प्रकाश दिखी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर। मैं उस पीलेपन लिए हुए पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वेयर। कम से कम मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। मेरी नाक भी लगभग बाहर आ चुका थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। और फिर इसके बाद मैंने तीसरी बार नीचे जाना प्रारंभ किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड हॉट वाटर। जब मैं सतह के ऊपर आया, जब मेरी नाक बाहर निकली, मैंने ऑक्सीजन लेने की, मैंने हवा लेने की कोशिश की, लेकिन बदले में मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। और फिर से मैं नीचे जा रहा था। वो जो पीली रोशनी थी वो जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। और फिर पूरी कोशिश करके आई रिलैक्स्ड। मैं एकदम रिलैक्स मुद्रा में हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। मेरे पैर भी जैसे बेजान पड़े हुए थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और मेरे दिमाग में भी जो भी योजना मैंने सोच रखी थी, उसमें भी शाह कालापन छाता जा रहा था। वो भी काम करना बंद कर दिया। इट वाइप्ड आउट फियर। और फिर ऐसा लगा जैसे उस मस्तिष्क ने सब कुछ मेरे अंदर से भय को निकाल दिया हो। इट वाइप्ड आउट टेरर। उसने भय को भी मेरे अंदर से बाहर कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब मुझे कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। सब कुछ शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। कुछ भी भय डरने की बात नहीं थी। दिस इज नाइस। और मुझे अच्छा लग रहा था। टू बी ड्राउजी। मैं सो रहा था। टू गो टू स्लीप, जैसे सो जाए। मस्तिष्क मुझसे कह रहा हो सो जाओ। नो नीड टू जम्प। उछलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जम्प। अब तुम बहुत थक चुके हो। अब तुम कोई भी कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली। अच्छा यही है कि जो हो रहा है होने दो। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। हवा में तैरो। टेंडर्स आर्म्स अराउंड मी। और उसमें कोई कोमल बाहें मुझे अपने गले से लगाना चाहती हो। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। वे बाहें जैसे माँ की। माँ मुझे आगोश में लेना चाहती हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। मुझे अब सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। और मैं जो हो रहा था होने दो। और जीवन का पर्दा जैसे गिर चुका हो। The fear. The narrator felt that it took a long time to reach the bottom, and he jumped with all his might, but he came up very slowly, contrary to what he expected. As the narrator reached the top, he flailed at the surface and tried to lift his legs up, but failed and started down, drowning again.
He planned to jump again from the bottom, but as he opened his eyes, fear took hold of him and he felt paralyzed. The narrator jumped once again and reached the surface, but started drowning again. This time he felt a strange peace came over him. He just wanted to sleep and he felt the curtain of life fall. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool vomiting. और अगली चीज जो मुझे याद है बस यही कि मैं स्विमिंग पूल के किनारे पड़ा हुआ था और उल्टियां कर रहा था. द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग. और वो लड़का वहां खड़ा था और उसने बस वो कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था. समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड. अरे ये लड़का लगभग मर चुका था. बी ऑल राइट नाउ. अब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम. चलो इसे लॉकर रूम में लेके चलते हैं. सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद आई वॉकड होम और मैं घर जा सका. आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग. मैं बहुत कमजोर हो गया था, कांप रहा था. आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. मैं कांपा, चिल्लाया जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा. पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था. आई कुडेंट ईट दैट नाइट. मैं उस रात कुछ भी खा भी नहीं सका. फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट. कई दिनों तक वो भय मेरे दिल में बैठा रहा. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. जरा भी शरीर में मूवमेंट होती थी उससे पेन होता था. मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. मेरा पेट भी खराब, घुटनों में दर्द हो रहे थे. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. और फिर मैं पूल पर कभी वापस नहीं गया. आई फियर्ड वाटर. मैं पानी से डरने लगा. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. जब भी जितना भी हो सकता था मैं पानी के करीब जाने से बचता था. ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केट्स. और कुछ वर्षों के बाद जब मुझे कैस्केट्स के पानी के बारे में पता चला, आई वांटेड टू गेट इनटू देम. मैं उसमें जाना चाहता था. एंड व्हेन एवर आई डिड, वेदर आई वाज वेडिंग द ट्यूटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग. और जब भी मैंने ऐसा किया, जब मैं ट्यूटन नदी के और रिवर करीब जाता था नहाने के लिए, इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स पे जो गर्म पानी की झील थी वहां, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल. वो भय जिसने पूल में जो जिसने मुझे जकड़ लिया था, वुड कम बैक. वो वापस पुनः से लौट आता था मुझे डराने के लिए. इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली. और उसने भय ने जैसे मेरे ऊपर कब्जा कर लिया हो. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. मेरे पैर पैरालाइज्ड हो गए थे. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. और जैसे बर्फ की तरह से भय जो है मेरे हृदय में बैठ चुका था. दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. और ये हैंडीकैप, ये विकलांगता जो मेरे अंदर आ चुकी थी, वर्षों तक रही. इन कैनोइज on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the shoots and म्यूटिलस इन ओरेगन. कभी भी मैं फिशिंग के लिए, बैथिंग के लिए कभी भी जाता था, ये भय में जैसे मुझे जकड़ लिया हो. फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केट्स. वेयर एवर आई वेंट, जहां जहां मैं गया, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी. ये भय ने मेरा पीछा जारी रखा. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स. और ये मछली पकड़ने की खुशी को जैसे उसने बर्बाद ही कर दिया. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कनोइंग. और सारी खुशियों जिस पर मुझे बहुत खुशी मिलती थी, कनोइंग करने में, बोटिंग करने में, स्विमिंग करने में, सब सारी खुशियां जाती रही. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. मैंने सब तरह से कोशिश की इस भय को अपने अंदर से निकालूं. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन उसने जैसे मुझे जकड़ लिया हो. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. और अंत में अक्टूबर के महीने में मैंने यह निर्णय किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा और स्विमिंग सीखूंगा. आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक. मैं एक पूल पे गया और वहां सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करने लगा. एन आवर ईच डे, 1 घंटा पर डे. द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी. उस इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांधी मेरे शरीर पे. ए रोप अटैच टू द बेल्ट. और उस बेल्ट को रोप से अटैच किया. वेंट थ्रू ए पुली. और जो एक पुली के सहारे दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ऊपर से एक केबल बंधी हुई थी. ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप. और उसे वो अंतिम सिरे को इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा हुआ था. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ. मैं पानी में अंदर जाता, आगे जाता, पीछे आता, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, ऐसा मैं करता रहा. और इंस्ट्रक्टर वो केबल पकड़े रहता जिससे मैं बंधा हुआ था. आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, घंटे दर घंटे, सप्ताह और दिन, मैं ऐसा ही करता, प्रैक्टिस करता रहा. वन
On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. और जब भी मैं जाता, पानी में आगे बढ़ता, वो भय मुझे जकड़ लेता. Each time the instructor relaxes his holds on the rope, और जब भी इंस्ट्रक्टर जो है रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता, and I went under, और जब पानी के अंदर जाता, some of the old terror returned and my legs froze. वही भय वापस से आ जाता और मेरे पैर जैसे फ्रीज हो जाते. It was 3 months before the tension began to slack. और 3 महीने हो चुके थे. Then he taught me to put my face under water. फिर उसने इंस्ट्रक्टर ने मुझे पानी में अपने चेहरे को अंदर करना सिखाया. And exhale, और कैसे सांस छोड़नी है, सांस लेनी है. And to raise my nose and inhale, और कैसे अपनी नाक को उठा करके सांस को अंदर करनी है. I repeated the exercises hundreds of times. मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. और टुकड़ों टुकड़ों में जो भय मेरे अंदर बैठ चुका था, जिसने मुझे अपने वश में कर रखा था, जब भी मैं पानी के अंदर अपने सर को करता, वो भय जकड़ लेता और इससे मैं टुकड़ों टुकड़ों में नहीं जा पाई. इससे मैं लड़ता. A lifelong fear. The next thing the narrator remembers is waking up beside the pool with someone scolding the boy who threw him into the pool. After this incident, the narrator never went back to the pool. He avoided water wherever he could. Later in life, whenever he went fishing or was on a trip to any lake, the fear would grip him again. He got an instructor to help him overcome the fear. He began training to overcome his fear bit by bit. He learned to get into water while tied through a rope. He learned to put his face under water and exhale and raise his head and inhale. Dear students, please read these important lines and the incidents. Now we will continue. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. और अगली जो है उसने पूल के किनारे मुझे पैर चलाना सिखाया. For weeks I did just that. एक सप्ताह तक मैंने ऐसा ही किया. So my legs refused to work, और मेरे जब पैर काम करना बंद कर दिया, but they gradually relaxed. लेकिन धीरे धीरे मेरे पैर प्रारंभ में तो काम करना बंद कर दिए, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स होते गए, पैर चलने लगे. एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं अपने पैरों को, हाथों को कमांड कर सकता था. Thus piece by piece he built a swimmer. और उस इंस्ट्रक्टर ने टुकड़ों टुकड़ों में करके मुझे एक तैराक बना दिया. And when he had perfected each piece, और जब उसने सारे टुकड़े टुकड़े को मुझे ट्रेंड कर दिया, मुझे सिखा दिया, मुझे परफेक्ट बना दिया, he put them together into an integrated whole. फिर उन्होंने एक साथ करने को मुझे कहा और सिखाया. In April he said, और अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा, now you can swim. अब तुम तैर सकते हो. Dive off and swim the length of the pool. छलांग लगाओ और पूरे पूल में अंत तक चले जाओ. Crawl, stroke. I did. क्रॉलिंग करता हुआ मैंने ऐसा ही किया. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. अब इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो चुका था. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. लेकिन मेरे भय अंदर से अभी भय नहीं गया था. आई स्टिल वंडर्ड. मुझे अभी भी ये लग रहा था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि जब मैं अकेले होऊंगा पूल में, क्या मुझे भय फिर से लगने लगेगा. आई ट्राइड इट. मैंने कोशिश की. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. मैं पूरे स्विमिंग पूल में तैर के यहाँ से वहां तक गया, किनारे से दूसरे किनारे तक. टीनी विस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. हाँ, छोटे छोटे भय मेरे अंदर आ रहे थे, मुझे भय लग रहा था. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर. लेकिन मैं अब इतना सीख करके परफेक्ट हो चुका था कि मैं अपनी त्योनियां चढ़ा करके कह सकता था उस भय से, ट्राइंग टू स्केयर मी. अरे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो. वेल, हियर इज टू यू. अच्छा, लो देखो, लुक देखो. एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. मैं फिर से जाता हूँ स्विमिंग पूल में, देखो, एक किनारे से दूसरे किनारे. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. जुलाई तक ऐसा ही होता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन अभी भी मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. मैं निश्चित नहीं था कि मेरे अंदर से सारा भय जाता रहा था. सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. तो मैं वेंटवर्थ की झील में गया, जो न्यू हैम्पशायर में स्थित थी. डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड. वहां पे डाइविंग की. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. और वह 2 मील तैरता हुआ स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक गया.
आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। हर तरह से तैराकी करता हुआ मैं 2 मील गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो भय मेरे अंदर पुनः वापस आई। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील में बीचों बीच था, वो भय मेरे अंदर आई। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग, मैं अपने चेहरे को पानी के अंदर कर लिया और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट बॉटमलेस वाटर, अथाह पानी, इतनी गहराई थी झील की। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिचर, और वो भय जो है रुक रुक के मेरे अंदर आ रही थी। आई लाफ्ड एंड सेड, मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, ओ मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या कर लोगे? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और वो भय फिर मेरे अंदर से जाता रहा और मैं तैर करके आगे निकल गया। Yet I had residual doubts, लेकिन अभी भी मुझे संदेह था। At my first opportunity, पहले अवसर पर I hurried west, went up to the Teuton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to meet Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. और उस गर्म पानी की झील के किनारे मैंने अपना टेंट लगाया। The next morning, अगली सुबह I stripped, dived into the lake, मैंने झील में छलांग लगा दी। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं उस किनारे तक चला गया और फिर तैरता हुआ वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्प्रॉन किया करते थे। आई साउटेड विद जॉय, और जब मैंने ऐसा कर लिया मैं खुशी से चिल्ला पड़ा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट की पहाड़ियां जो थी उससे मेरी आवाज टकरा करके वापस आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और ये अनुभव जो था, इसका बहुत बड़ा मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, केवल वही लोग जिन्होंने इस भय का अनुभव किया हो और उस पर फिर विजय प्राप्त की हो, वही इसकी प्रशंसा कर सकता था और समझ सकता था। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत के भय में ही आतंक है, उसी से भय है, मौत में तो शांति है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें जो भी भय है वो मृत्यु का ही भय है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने मृत्यु का अनुभव किया था, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो ये जो भय, आतंक, जो मरने का, मृत्यु का भय है, उसे कैसा लगता है, इसका मैंने अनुभव किया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और जीवन जीने की तीव्रता और बढ़ती गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैं, मेरे अंदर से भय जाता रहा। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, अब मैं स्वतंत्र था चढ़ने में, तैरने में, झील में डाइविंग करने में, चोटियों पर चढ़ने में, और अपने भय को एक तरफ करने में। अब मैं स्वतंत्र हो गया था। Overcoming the fear. The trainer held him to the side of the pool and taught him to kick with his legs. Initially, he had trouble, but gradually he relaxed and got used to the water. Now that the narrator had learned to swim, he still wanted to test himself alone. He went to the pool alone and swam until he could command his body without any fear. He went to the lake Wentworth and swam 2 miles across to the Stampat Island. He put his face under in the middle of the lake and saw bottomless water. The fear returned for a moment, but he swam on. To test himself further, he went to Warm Lake on the Conrad Creek trail and jumped into the lake and swam to the other shore and back. The narrator felt that he had conquered his fear of water and was finally free. Dear student, understand this. Thank you very much, dear students, for watching the video presentation of the lesson Deep Water, written by William Douglas.